What took you long? We love you, sir. श्रीमान, ready to every battalion, LCG पासीघाट, 2 चेकीघाट, घाट, आपके निरीक्षण में हजरत। जय श्रीमान। जय श्रीमान, श्रीमान घाट को विसर्जन करने की अनुमति देता हूँ। जय श्रीमान। संतरी खड़ा रहे, बाकी गार्ड विसर्जन। धन्यवाद। पानी यहाँ ला पानी 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 Good morning, everybody. Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri Pema Khandu sir, Honorable Union Minister of State, Independent in Charge, Youth Affairs and Sports and Minority Affairs, Sri Kiran Rijiju sir, Honorable Minister WRT Forest and Environment, Arunachal Pradesh, Sri Mama Netung sir, Honorable Minister Health and Family Welfare, Sri Alo River sir, Honorable Member of Parliament, Sri Tapir Gau sir, Honorable Member MLA, Advisor to UD Minister, Sri Kaling Moing sir, Honorable Minister MLA, Advisor to Forest and Environment Minister, Sri Kumsi Sidoso sir, Honorable MLA and Advisor to Honorable CM on PWD, Sri Prupa Singh sir, Honorable MLA, State BJP Secretary, General Secretary, Sri J. Namsen sir, Honorable MLA Sri Lambor Pang sir, Honorable MLA Sri Nindong Iring sir, Honorable MLA Sri Haing Mangpi sir, Honorable MLA Sri Ojing Tasing sir, Honorable MLA Sri J. Taku sir, respected DC Madam, Senior Superintendent of Police Pasighar, PCCL, President ABK, General Secretary ABK, Chief Engineer PW Eastern Zone B, other distinguished dignitaries present here, all SODs and officers of district administration, public leaders, Gaon Buddhas, ABK leaders, all Bawang student leaders, social workers, my esteemed faculty members, staff of the college, dear students, media friends, ladies and gentlemen. On behalf of JNC Fraternity, welcome you all. Good afternoon, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen. It's my pleasure to read out the memorandum submitted to Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, on the occasion of his visit to the Jawaharlal Nehru College, Pasighar, on 3rd of April 2021. Respected Sir,
at the outset, we, the JNC fraternity, gratefully acknowledge your love, support, and keen concern for Jain College, Pasighat. The existing auditorium where we are assembled today is very old and in decrepit condition. The auditorium, with only 200 sitting capacity, is too small to meet the needs of JNC, having the present strength of nearly 4,404, 71 faculty members and 56 ministerial staff. It is challenging to organize a mega event in this auditorium. The new auditorium will prove to be a hub of academic and cultural activities of the college, like seminar and workshop and student-related cultural and literary activities and the events of the Pasighat town. Catering to JNC's fraternity, a fully furnished state-of-the-art auditorium with 1,000 sitting capacity is the need of the hour, for which we are respectfully entreating your kind authority. We hope your kind authority will sympathetically consider our humble appeal and provide us with an auditorium with modern facilities at Darlington. Dr. Mirabai Modi, Principal, Jain College, on behalf of the Jain College fraternity. Thank you. Namaskar. And it's a historic day for the people of Pasighat. One of the long-felt demand and the long-felt need was fulfilled. Honorable Chief Minister has inaugurated the Arunachal University. It's a very good sign for the student community. The previous speaker has said, during the starting time, only JNC had 64 students. Now, as per record, it has come to the 4,404 numbers. It's a huge number. So it will go a very good benefit to the student community. And the two hostels, especially the 100-bedded two hostels, has been inaugurated, which will be a very good for the especially boys students who are living in the rent house. So this is a good very decision the government has taken, and it has been inaugurated. And Honorable Chief Minister, in the recent budget speech also, he has announced roughly around 5 crore for the Arunachal University, which for the student community. So please give a big hand. 35 years पहले CM साहब, मैं इसी दायस में खड़ा था as a General Secretary of this college. 35 years पहले, और मिलाराय मोदी और वाइस प्रिंसिपल कॉलेज पेटर्निटी ने जो आपको मेमोरेंडम दिया, मैं भी इस कॉलेज का एक फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी होने के कारण मेरा तरफ से भी आपको मांग है। ये आलोलिवांग भी मेरा क्लास फ्रेंड है, आपका हेल्थ मिनिस्टर, हम लोग सब का भी मांग है, क्योंकि उस समय 900 प्लस स्टूडेंट ही था इस कॉलेज में जब मैं जनरल सेक्रेटरी था 86 में। तो यहाँ बहुत माने भर्ती भी नहीं होता था, फंक्शन होने से भी 900 प्लस ही स्टूडेंट था। आज 4000 प्लस स्टूडेंट हैं। उसके लिए हर फंक्शन एक कॉलेज का, एक यूनिवर्सिटी का, एक ऑडिटोरियम ही फुल प्लेजेंट ऑडिटोरियम, जिसमें टेनिस भी यहाँ खेलेगा, बैडमिंटन भी यहाँ खेलेगा। आज का दिन में शेर साहब आप तो इतना स्मार्ट है, उस ऑडिटोरियम में जिम भी होना चाहिए और इंडोर जिम एंड आउटडोर जिम भी ऐसा एक ऑडिटोरियम कॉलेज में हो, क्योंकि आप दिल्ली से पढ़ के आए, किरण दिल्ली से पढ़ के आए, मैक्सिमम यहाँ लंबोतायंग साहब, नीलगिरी साहब, गेगोंगापांग से लेके आज तक इस पीढ़ी में स्पेशली हमारा आदि समाज, गालो समाज, तिराप संगलांग, तवांग से लेके जितना आपका सीनियर ऑफिसर है, कॉलेज से पानी पिया हुआ और कॉलेज से इस जेल कॉलेज से नमक खाया हुआ है। इसके में कॉलेज पेटर्निटी ने जो आपको रिक्वेस्ट किया, इसको भी हम लोग ये करना चाहिए।
मदद करना चाहिए। आज आपने ये आज जिस हॉस्टल को आपने मनूर जामो का नाम से जो अभी रिमोट करता किरण भाई और अब्दुल्लू, यहाँ शास्त्री हॉस्टल हुआ करता था, वहाँ हम लोग जिंदगी बिताया। सामने में सुभाष जब एमए पढ़ रहा था, यहाँ दो सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, यही सुभाष हॉस्टल में। अभी भी मुझे याद है 270 कितना स्टेप था। उस जमाने में तो हम लोग साइकिल से तो ऊपर नहीं जा सकता था, हर कोई का साथ स्कूटर नहीं होता था। तो हम लोग यहाँ से लोअर कैंपस से अपर कैंपस में 277 ना 75 स्टेप्स है। ये अभी भी मुझे याद है। अकेला उतरने से भी काउंट करता था, जाने से भी पसीना पसीना, जुलाई अगस्त में हम लोग पसीना बहा के हम लोग ये स्टेप, इस स्टेप में ही आशीर्वाद है। तो कॉलेज पैटर्निटी को भी आज इतना नेशर के साथ हम सब जीना है। पेमा खांडू साहब का, मामा नातुंग साहब का जो अभियान चलाया, आप सब ने इस कॉलेज ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किया, अच्छा लगा। तो पासीघाट जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट शहर है। ये पासीघाट सबसे पुराना शहर भी है, यहाँ सबसे पहला कॉलेज भी खोला है, यहाँ सबसे पहले पढ़ा लिखा यहाँ से शुरू हुआ है। तो पासीघाट से कोई भी जो अभियान शुरू होता है, ये पूरा हमारे प्रदेश में इसका मैसेज पहुँचेगा। और ये जेएनसी कॉलेज पासीघाट के बारे में बहुत बताया गया है। यहाँ ये बहुत ही पुराना कॉलेज है और इस कॉलेज के छात्रों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भविष्य हैं और जो भी अरुणाचल का आज स्टूडेंट्स है, यूथ है, ये हमारा देश का भविष्य है, हमारा प्रदेश का भविष्य है। आप पे हमारा बहुत भरोसा है। आजकल सोशल मीडिया आने की वजह से बहुत चीज़ डायरेक्ट हो गया। एक तरफ से फ़ायदा है, नॉलेज तुरंत मिल जाता है, कोई भी चीज़ पता करना है तुरंत मिल जाता है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बिगड़ने का भी बहुत चांसेस रहता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको महसूस करना चाहिए। मेरे पास में कुछ विभाग है, मैं आपके यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स के साथ साथ मैं आयुष का भी मिनिस्टर हूँ इस वक्त। पासीघाट में कई साल पहले यहाँ एक नॉर्थ ईस्ट फोक मेडिसिन इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। आज उस फोक मेडिसिन इंस्टीट्यूट में कई जो महिलाएं मेरे पास में आए, वो नौकरी से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और अभी जो कुछ बचे हैं उनका भी डिस्चार्ज होने वाले हैं। तो केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय लिया जिसकी वजह से कहा गया कि यहाँ जो स्टाफ है वो नेसेसरी नहीं था, तो उस समय लिया गया है। तो आज इसको इतना स्टाफ जरूरत नहीं है, ऐसा एक निर्णय हुआ था। तो ये मेरा जानकारी में है। मैंने जब ये आज से 3 महीने पहले जब आयुष मिनिस्ट्री मुझे दिया गया था, तो मैंने देखा, इसको मैंने पता लगाया, तो इसको हम एक तरीका भी निकलेंगे। और मैं साथ साथ एक घोषणा भी करना चाहता हूँ कि ये जो पासीघाट में नॉर्थ ईस्ट फोक मेडिसिन इंस्टीट्यूट है, इसको हम अपग्रेड करा करके हमने एक कैबिनेट नोट बनाया हुआ है। इसको हम फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट और कॉलेज खोलेंगे यहाँ पे। उसका नाम हमने जो कैबिनेट नोट मूव किया है, उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट आयुर्वेद फोक मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो ये फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट हो जाएगा। उसके बाद फुल फ्लेज यहाँ कॉलेज खोलेगा। यहाँ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का तो आपको मालूम है, मैं पहले यहाँ आकर के काफ़ी बिल्डिंग वगैरह इनॉग्रेशन भी किया था 3-4 साल पहले। तो ये जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी हमारे अरुणाचल में तमाम हमारा पेड़ पौधे जो मेडिसिनल प्लांट्स है, बहुत ही हमारे पास क्वालिटी वाला जो जंगल में चीज़ मिलते हैं, नेचुरल चीज़ मिलते हैं, हर्बल्स होते हैं, इस सब को कॉमर्शियली हम किस तरह से अपने लोगों का ज़िंदगी को भला करने के लिए और साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए अब ये जो पासीघाट में जो होगा, उसके बाद हम बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी फ्यूचर में मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह में क्या क्या कर सकते हैं, इसका भी हम सोच रहे हैं। साथ साथ में हमारा देश में एक नए जोश के साथ हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, खेलो इंडिया फिट इंडिया। तो आज हमारे यहाँ नेहरू युवा केंद्र के कुछ वॉलंटियर्स भी मिले। अभी मैंने कॉलेज के एनएसएस के कुछ वॉलंटियर्स को देखे, बड़ा अच्छा स्मार्ट ड्रेस। तो ये एनएसएस
NYKS जितना भी जो मेरे मिनिस्ट्री में आते हैं, इनका भी आगे जाकर के काम बढ़ाने का हम प्लान कर रहे हैं। हमने एक नए तरीके से सोचा है कि आगे चाहे वो स्काउट्स एंड गाइड्स हो, चाहे वो NCC, चाहे वो NYKS या NSS हो, इन लोगों के लिए और अच्छा से क्या हम दायित्व दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश एक अच्छा एक्सपोर्टिंग एक स्टेट बने जहाँ से अच्छा खिलाड़ी पैदा हो सके, इसके बारे में भी चीफ मिनिस्टर साहब हम दोनों ने काफ़ी चर्चा किया हुआ है। और आज यहाँ आके हमारे JNC के 1 पॉइंट मेमोरेंडम यहाँ पे दिया है कि काफ़ी पुराना कॉलेज है सिंस 1964 से, मगर ये ऑडिटोरियम जो है वहीं का वहीं रह गया और स्टूडेंट्स का नंबर जो 900 से लेके अभी मोर देन 4000 प्लस हो गया। तो मैं लास्ट टाइम जो विजिट किया था तो आपकी ये रोड जो लोअर कैंपस अपर कैंपस के बीच में था, काफ़ी ख़राब रोड था। तो MLA कलीम मोइन साहब ने कहा कि यहाँ पे रोड्स का ज़रूरत है, तो मैं तुरंत एक डबल लेन रोड का भी सेंक्शन कर दिया। आज वो रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट है और साथ साथ यहाँ पे JNC के लिए यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल का यूनिट भी 200 बॉयज़ हॉस्टल का भी मैंने सेंक्शन कर दिया, उसका उद्घाटन भी आज हुआ है। तो JNC कॉलेज हमारा राज्य का सबसे पुराना कॉलेज है। उस ज़माने में JNC कॉलेज जो है इट यूज्ड टू प्ले लाइक एन बॉन्डिंग फैक्टर ऑफ पैन अरुणाचल। पैन अरुणाचल का उस वक्त में एक बॉन्डिंग फैक्टर था। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ में आके पढ़ाई करके आपस में कम्युनल हार्मनी, एक ट्राइब दूसरा ट्राइब कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसके बारे में एक जानकारी भी यहाँ पे मिल जाता था। मगर ओवर द ईयर्स अभी कॉलेजेस हर एक जगह खुलने के बाद यहाँ पे शायद बाहर के ट्राइब्स के लोग शायद यहाँ पे उतना नहीं आता होगा, मगर बीइंग द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ से इतना सारा प्रोडक्ट्स अच्छा यहाँ से जो अलमुनी है बहुत लोग यहाँ से निकल के अच्छा ऑफिसर्स बना, अच्छा पॉलिटिशियंस बना, बहुत लोग या तो यहाँ पे ही मौजूद है हमारे सरकार में, हमारे कलीग होके। तो काफ़ी अरुणाचल का योगदान इस JNC कॉलेज को दिया है और इस JNC कॉलेज ने जो योगदान दिया है हम लोग उसको भूलना नहीं चाहिए। तो मैं अपनी ओर से मैं ज़रूर यहाँ पे जो 1 पॉइंट मेमोरेंडम लिखा है कि 1000 कैपेसिटी का एक अच्छा ऑडिटोरियम मैं इस साल आप लोगों को तुरंत अप्रूवल करके काम में दे दूँगा। और साथ ही साथ इस यहाँ पे हमारा कलीग्स, सीनियर कलीग्स, अपना कप्ता बेगांव साहब है, अपना इरिंग साहब है, अपना हेल्थ मिनिस्टर साहब भी है। तो आप जितने भी जो यहाँ के जो अलमुनी है और बहुत सारा सीनियर ऑफिसर्स भी है, बहुत अच्छा बिजनेस लोग पर्सन्स भी होगा इस JNC के अलमुनी। तो आप अलमुनी लोगों को भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अलमुनी की तरफ से भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों की तरफ से भी यहाँ पे दीजिए, आप लोगों का यादगार के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आजकल एजुकेशन का प्रोफेशन में इंस्टीट्यूट को एक्चुअली बाद में अलमुनी लोग टेक ओवर कर लेते हैं। तो मॉडर्न जो कंसेप्ट होता है वो इस प्रकार का ये कंसेप्ट होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में भी हो गया, तो हमारा आई बिलोंग फ्रॉम हिंदू कॉलेज, तो मैं भी हिंदू कॉलेज का एक अलमुनी हूँ। तो हमारा भी ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन बहुत तगड़ा एक अक्रॉस कंट्री बहुत तगड़ा एक एसोसिएशन है। तो हम लोग ने कंट्रीब्यूट करके वहाँ में भी एक हॉस्टल वहाँ पे ये हिंदू कॉलेज में हम लोग खुद अलमुनी लोग ने ही बना दिया। तो इस प्रकार से अलमुनी यहाँ का तो इतना लार्ज अलमुनी है JNC का। तो मेरा भी और से आप लोगों को एक मेमोरेंडम है अलमुनी लोगों को कि एक प्रॉपर्टी अच्छा एक प्रॉपर्टी अलमुनी की तरफ से यहाँ में बनना चाहिए, ताकि जो क्लोजनेस हो, एफेक्शन जो होता है इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो इतना कहते हुए मैं आज के इस इवेंट को लेके मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे यहाँ के सभी ऑर्गेनाइजेशंस को।